Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about different types of disease. See, what is the meaning of disease? Disease means the condition of body away from health, without health. That is the disease. Means our body or any part of the body, any organ of the body, its function become disrupted, function reduce, function stop or block. That is the condition of disease. डिजीज के कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी का कोई पार्ट या कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू काम करना बंद कर देता है या उसका फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. सो दैट इज द कंडीशन ऑफ डिजीज. See types of disease, mainly two types of disease. One is the congenital disease and other is the acquired disease. Congenital disease means the disease which present since birth. Okay, that means congenital disease transmit from parents to their offspring. It is the hereditary disease. Okay, it passed from one generation to next generation and it is due to defect in the genetic material. So that is the congenital disease since birth. These are the examples of congenital disease like hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, thalassemia, phenylketonuria, cystic fibrosis, and many type of syndromes like the Down syndrome, Klinefelter syndrome, Cry-Du-Chat syndrome. These are the different type of syndrome. So these diseases are the congenital disease present since birth. They transfer from parent to their offspring due to the genetic defect. Next type of disease, that is the acquired disease. And acquired disease, that is after birth, during the life cycle of the organism, such disease occurs. That is the acquired disease. And this acquired disease is of two types. One is the communicable disease, that we say infectious disease, and second one is the non-communicable disease or non-infectious disease. Clear? Communicable disease और इन्फेक्टियस डिजीज मीन्स ऐसा डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होगा. क्लियर? तो ऐसे डिजीज को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज. क्लियर? एंड दिस कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज, अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. वन इज द कॉन्टेजियस and other is the non-contagious. Contagious disease is spread through direct transmission. Clear? That means contagious type of disease is spread through actual contact between infected person and healthy person. जब infected person के कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन एक्चुअली आ जाएगा तो इस तरह के डिजीज का ट्रांसमिशन होता है. क्लियर? दैट मीन जो कॉन्टेजियस डिजीज है ये एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन स्प्रेड होता है, ट्रांसमिशन होता है. क्लियर? जैसे कि एग्जांपल है एड्स है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ये HIV वायरस से होता है, ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस से. स्मॉल पॉक्स है, वेरियोला वायरस से होता है. चिकन पॉक्स है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है. लेप्रोसी है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है. ठीक है? मिसेल्स है, मॉर्बिली वायरस से होता है. सो दीज डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन बाय एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम. क्लियर? सो दैट इज द कॉन्टेजियस डिजीज एंड दैट ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट. Next, non-contagious disease. Non-contagious disease means disease which is spread from one person to another person, from one place to another place through indirect transmission. कैसा ट्रांसमिशन है?
indirect transmission. So non-contagious disease that is spread through indirect transmission, they may be through contaminated air, water and food. अगर फूड कंटामिनेटेड है, एयर कंटामिनेटेड है, वाटर कंटामिनेटेड है, तो कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड के थ्रू नॉन कॉन्टेजियस डिजीज स्प्रेड होगा, या वेक्टर्स के थ्रू, वेक्टर या कैरियर्स के थ्रू स्प्रेड होगा. वेक्टर्स आर कैरियर, दैट मीन दोज ऑर्गेनिजम्स विच स्प्रेड द पैथोजेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन आर प्लेस्ड टू द हेल्दी पर्सन without infecting itself. That is the carrier or vector. Like the mosquito, housefly, certain insects, ticks, mites, they are the vectors and they spread the pathogens from infected person to the healthy person. So non-contagious disease is spread through contaminated air, water and food and through the vectors. See, like the malaria. Malaria is spread by the Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito, and malaria caused by the Plasmodium malariae, that is the protozoan disease. Tuberculosis, commonly we say TB. TB caused by the bacteria, that is the Mycobacterium tuberculosis. Typhoid, it is also bacterial disease. Salmonella typhi से होता है. Pneumonia, also the bacterial disease. Streptococcus pneumoniae या Diplococcus pneumoniae से pneumonia होता है. Cholera, Vibrio cholerae बैक्टीरिया से cholera होगा. Ascariosis, Ascaris lumbricoides से होता है ascariosis. Amoebiasis, Entamoeba histolytica से होता है. Filariasis, Wuchereria filariae से होता है. ठीक है, Wuchereria filariasis. So these diseases are the non-contagious disease. They spread through indirect transmission, that means through the contaminated air, water and food and through the vectors. Clear? So these are the two different types of communicable disease, infectious disease. Now we say non-communicable disease or non-infectious disease. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को क्या बोलते हैं हम? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज बोलते हैं. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डिफरेंट टाइप्स के हैं, यहां पे लोग देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज द डिफिशियंसी डिजीज. डिफिशियंसी डिजीज मीन्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इट मे बी डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मे बी द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, मे बी द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन और मिनरल एंड सॉल्ट्स. इनके डिफिशियंसीज होगा, इनके कमी से होगा, तो ऐसे डिजीज को बोलते हैं हम क्या? डिफिशियंसी डिजीज. जैसे कि क्वाशियोरकर है, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर डिजीज, प्रोटीन की कमी से. मेरेस्मस है, दैट इज PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है. ये प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होगा. अगर प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, लंबे समय तक प्रोटीन और एनर्जी की कमी रहेगी तो मेरेस्मस होता है. ग्वाइटर है, सिंपल ग्वाइटर, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, इन द फूड. क्लियर? अगर फूड में, डाइट में आयोडीन की कमी है तो ग्वाइटर डिजीज होता है, जिसमें नेक क्या करता है? नेक में स्वेलिंग आ जाती है. रिकेट्स है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. ओके, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है. स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है. नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है. बेरी बेरी डिजीज है, विटामिन B1 की कमी से होता है. ऑस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम की कमी से होता है. सो दीज आर द डिजीजेस कम्स अंडर द डिफिशियंसी डिजीज, दैट मीन डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट वी सी डीजनरेटिव डिजीज. डीजनरेटिव डिजीज का मतलब है कोई बॉडी ऑर्गन, कोई बॉडी पार्ट डीजनरेट हो गया, रिजल्टेंट उसका फंक्शन ब्लॉक हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ऐसे डिजीज को बोलते हैं हम डीजनरेटिव डिजीज. लाइक हार्ट अटैक है, हार्ट फेल है. इस कंडीशन में क्या होता है? हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो रिड्यूस हो जाता है. क्लियर? हार्ट बीट रिड्यूस हो जाती है.
तो दैट इज द हार्ट अटैक, हार्ट फेल, डिजनरेटिव डिजीज। एथेरोस्क्लेरोसिस है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स है, स्पेशली आर्टरीज, इनके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। तो जो ब्लड वेसल्स है वो, उनका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है ब्लड वेसल की। क्लियर? तो ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड का प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। सो दैट इज द एथेरो एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। डायबिटीज है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास डैमेज हो जाती है, तो इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, रिजल्टेंट ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ डायबिटीज। तो ये सारे डिजीजेस कैसे हैं? डीजनरेटिव डिजीजेस हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी सी एलर्जी। एलर्जी का क्या मतलब होता है? एलर्जी का मतलब है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, एग्जैजरेटेड सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस या किसी पर्टिकुलर ड्रग्स के अगेंस्ट, या पॉलन ग्रेन या डस्ट या रेडिएशन या कोल्ड के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम एलर्जी। तो एलर्जी के कंडीशन में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। एग्जाम्पल है एलर्जी का, जैसे कि एस्थमा है। एस्थमा के केस में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रिजल्टेंट जो पैसेज है एयर फ्लो का वो रिड्यूस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो दैट इज द केस ऑफ एस्थमा। रिजल्टेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, हे फीवर है, इसी तरह से है। तो दीज डिजीजेस कम्स अंडर द एलर्जी, एंड एलर्जी मीन्स एग्जैजरेटेड हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट कैंसर है। कैंसर मीन्स जब हमारे बॉडी में किसी पर्टिकुलर साइट में सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाता है, तो वहां पे मास ऑफ द सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट मीन ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ कैंसर, व्हेन द सेल डिवीजन in any site of the body become rapid, random, uncontrolled, purposeless. So there is the formation of tumor, and that tumor is the cancer. Many types of cancers are there, like carcinoma, sarcoma, myeloma, leukemia, gliomas. Okay, so many types of cancer there. Lifestyle or addiction diseases or disorder. मॉडर्न लाइफ के रिजल्टेंट भी ढेर सारे डिजीज होते हैं, जैसे कि एक्चुअली ये क्या है? एडिक्शन है, किसी भी चीज का एडिक्ट, कोई पर्सन किसी भी चीज के लिए क्या हो जाए? एडिक्ट हो जाए। सो दैट इज द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर या डिजीज या एडिक्शन। जैसे अल्कोहल, अल्कोहलिक पर्सन है, दे यूजुअली एंड रेगुलरली टेक द अल्कोहल, दैट इज एडिक्शन टू द अल्कोहल। सर्टेन ड्रग्स के लिए एडिक्शन है, जैसे हीरोइन है, गांजा है, भांग है, अफीम है, मार्फिन है, कोकीन है, इसके लिए क्या एडिक्शन है। टी के लिए एडिक्शन, कॉफी के लिए एडिक्शन, स्मोकिंग के लिए एडिक्शन। तो ये क्या है? एडिक्शन है, दैट इज द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट मेंटल डिजीज और डिसऑर्डर। मेंटल डिजीज या डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी, depression, schizophrenia. Okay, so these are the mental depression, mental disorder or disease. So these are the different type of diseases. Okay, in next lecture we will discuss what is chronic disease, acute disease, what is pandemic. Okay, so I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.